Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In today's video, we are going to continue our discussion on differentiation. So आज का जो हमारा agenda रहेगा, we will be discussing linear approximation क्या होता है. We will also understand what is the meaning of differentials. What is the meaning of differentials? वो हम लोग discuss करेंगे. एंड उसके बाद पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, जैसे लीनियर अप्रोक्सीमेशन अगर होता है तो क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन, क्यूबिक अप्रोक्सीमेशन, बेसिकली पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन का क्या मतलब होता है. एंड एट द एंड वी विल फिनिश ऑफ विद talking about elasticity. That is going to be the agenda for today. And so for those of you who are new here, so we are doing a series on MME 1 semester 1 course. So we are discussing all the topics in series. So if you are someone who's related to economics in some manner, this is a series which is going to be very, very helpful for you. So please consider subscribing to my channel in case you fall into that category. And for those of you who have been with me, thank you so much for your support. I'm really overwhelmed to see the support that I'm getting, so thank you so much for that. And without further ado, let's get started, and let me start by sharing my screen. All right, so let's get started. Let me just quickly, once again mention what is going to be the agenda for today. So we want to discuss linear approximation. इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप अपने फंक्शन को अप्रोक्सीमेट करना चाहते हो यूजिंग अ लीनियर फंक्शन, कि भाई मेरे फंक्शन की वैल्यू एक नंबर के आसपास क्या होनी चाहिए विदाउट एक्चुअली पुटिंग द वैल्यूज इन दैट फंक्शन, तो उसको हम लोग लीनियर अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं. सो हाउ टू डू दैट लीनियर अप्रोक्सीमेशन, एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट डिफरेंशियल्स. So differentials का मतलब क्या होता है? So differential is nothing but when your x value changes by a little bit, how much does your y value changes, assuming आपका फंक्शन उसी रेट से ग्रो कर रहा है जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया था. So we will discuss that in detail. Linear approximation समझने के बाद we will go to polynomial approximation. So basically अगर आपको generally डिटरमाइन करना है कि अगर आपको कोई फंक्शन अप्रोक्सीमेट करना है अराउंड सम वैल्यू, और यू आर इंटरेस्टेड इन क्वाड्रेटिक या फिर क्यूबिक या फिर पावर 4 अप्रोक्सीमेशन, सो व्हाट इज द जनरल प्रोसीजर. जनरल प्रोसीजर क्या होता है वो हम लोग समझेंगे. एंड एट द एंड वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज इलास्टिसिटी. सो दिस इज अ टर्म जो आप लोग इकोनॉमिक्स में बहुत बार सुनते रहोगे एवरी सिंगल टाइम. सो अभी भी when you are doing your micro portion, you must be hearing elasticity a lot. So you want to understand कि economics में you study a lot of variables. So when one variable changes by some amount, so how much does the other variable change? So if one variable changes by 1%, how much does the other variable change by what percent? So ये सब हम लोग discuss करने वाले हैं. That is going to be our agenda. So all right, so without moving here and then, let's get started and let's start talking about linear approximation. Chalo ji, so start karte hain. And okay, so first of all, let's start talking about linear approximation. So I will basically start with the rationale for why this might be necessary. क्या जरूरत है लीनियरली अप्रोक्सीमेट करने की, डायरेक्टली क्यों नहीं हम लोग फंक्शन में पुट करके निकाल देते हैं. सो बेसिकली कई बार क्या होता है कि आपके लिए फंक्शन की वैल्यू निकाल पाना मुश्किल होता है. ठीक है, मान लो मैंने आपको फंक्शन दे दिया कि फंक्शन इज इक्वल्स टू x पावर 1/3. ठीक है, सो क्यूब रूट बेसिकली आपको निकालना है. ठीक है, तो मैंने बोल दिया कि चलो 8 का क्यूब रूट निकाल के बता दो. सो मैंने पूछा कि ओके, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज f8. तो मैंने पूछा है कि 8 रेज टू द पावर 1/3 क्या होगा, राइट. सो दिस इज सम सॉर्ट ऑफ अ इजी सिचुएशन टू डील विद. आपको पता है कि इफ यू डू 2 times 2 times 2, दैट इज पावर 1/3.
and then you know that okay, this is 2 raised to the power 3 and this entire raised to the power 1/3. तो आप क्या बोलोगे कि चलो जी इसका आंसर है 2. सो 8 का क्यूब रूट क्या हो गया 1/3. ठीक है, ऐसे ही मैं अगर आपको सिंपल सिचुएशंस देते जाऊं तो आप आंसर बता दोगे. बट व्हाट इफ आई आस्क यू कि कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू फॉर दिस फंक्शन फॉर लेट्स से 8.25. ठीक है, सो मैं आपको पूछ लूं कि क्या मुझे आप f 8.25 बता सकते हो. ठीक है, तो अब ये ऐसे तो हो नहीं पाएगा, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है. अगर आप जस्ट यू ट्राई टू यूज योर माइंड एंड फिगर आउट कि इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, वो तो हमसे होने नहीं वाला है, राइट. एटलीस्ट मुझसे तो नहीं होने वाला है. ठीक है, तो 8.25 रेज टू द पावर 1/3. अब ये कैसे निकालेंगे. ठीक है, अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करोगे, गूगल करोगे, ये सब अगर करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा. बट व्हाट इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि अच्छा ये जो नंबर है इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है किसके आसपास होने वाली है, दैट इज वेयर दिस काइंड ऑफ अप्रोक्सीमेशंस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो ये एक तरीके से रैशनल है, रीजनिंग है कि वाई समबडी माइट बी इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग लीनियर अप्रोक्सीमेशन. सो मान लो कोई मुझे इजी सा फंक्शन दे दे जिसके साथ मुझे ऑपरेशन करना आता हो, जिसको ऑपरेट मुझे करना आता हो. द मोमेंट यू हैव सच ए फंक्शन और फिर कोई पूछे कि अच्छा 8.25 की वैल्यू क्या है, आप एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं बता पाओगे बट क्लोजेस्ट वैल्यू क्या होगी वो आप एक तरीके से आंसर कर पाओगे. दैट इज अ रैशनल फॉर लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऑल्सो और एनी अदर पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक और ये सब जो भी है. ठीक है, सो पहले लीनियर से स्टार्ट करते हैं. तो ओके, अब मुझे अगर कोई एक लीनियर फंक्शन, मुझे एक लीनियर अप्रोक्सीमेशन करना है, तो हाउ डू आई गो अबाउट दैट. ठीक है, सो सबसे पहले द वे टू डू अ लीनियर अप्रोक्सीमेशन, तो ये कोई एक जनरल लीनियर फंक्शन आप नहीं बता सकते. ऐसा नहीं है कि ओके दिस इज अ फंक्शन, इसके लिए भाई एक फंक्शन बता दो विच इज लीनियर और वो आपको हर जगह के आंसर्स दे पाएगा अप्रोक्सीमेशन के. ऐसा नहीं होने वाला है. सो बेसिकली जस्ट टू गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ मोर बैकग्राउंड, अब देखो मान लो कि आपके पास ना एक डायग्राम है, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस. सो मान लो x पावर लेट्स से आपको फंक्शन है x पावर 1/3. ठीक है, सो मान लो जस्ट अगर पॉजिटिव साइड में देखने जाओगे तो इट्स माइट स्टार्ट टू लुक समथिंग लाइक दिस, लेट्स से समथिंग लाइक दिस. ओके, मान लो ठीक है कि दिस इज हाउ लेट्स से x पावर 1/3 लुक्स लाइक. ठीक है, और आपको पता है कि ओके लेट्स से x वैल्यू जब 1 होती है तो y वैल्यू भी 1 होती है. ठीक है, तो दिस इज योर x वैल्यू, दिस इज योर fx वैल्यू, एंड आप चाहते हो कि अच्छा 1 के आसपास मैं किस तरीके से अपने फंक्शन को डिटरमाइन करूं. सो एक्चुअली ये तो थोड़ा सा कर्व्ड नहीं है. लेट मी जस्ट मेक इट अ लिटिल बिट मोर कर्व्ड. सो लेट्स से इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, मान लो. ठीक है, सपोज दिस इज वेयर 1,1 लुक्स लाइक. ठीक है, तो आपको जानना है कि अच्छा मुझे अगर अपने फंक्शन की वैल्यू निकालनी है 1.01 पे या फिर लेट्स से 1.001 पे, ये सब नंबर्स पे आपको अपने फंक्शन की वैल्यू निकालनी है. तो इसको आप लोग किस तरीके से प्रोसीड करते हो. सो द जनरल प्रोसीजर दैट वी हैव इज, आप ये देखो, जब हम लोग इस फंक्शन को क्लोजली देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि अच्छा ये जो पॉइंट है इस पे जब भी हम लोग डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, दैट विल टेल अस द स्लोप ऑफ द टेंजेंट. ठीक है, सो इफ यू फाइंड f'1 दैट विल गिव यू व्हाट, द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल्स टू 1. x इक्वल्स टू 1 पे इस कर्व पे जो भी टेंजेंट होगी उसका स्लोप क्या होने वाला है वो आपको पता चल जाएगा. ठीक है, सो यू हैव स्लोप एंड उसकी स्लोप इस तरीके से होने वाली है. ये आपको टेंजेंट मिल गया. ठीक है, अगर आप क्लोजली देखो तो आपको पता चलेगा कि जब भी आपकी वैल्यूज 1 के आसपास हैं तो ये जो लाइन है ये कहीं ना कहीं आपका जो फंक्शन है उसके क्लोज ही वैल्यू दे रही है.
इफ यू स्टार्ट मूविंग फर्दर, ये आपको अलग वैल्यूज देने लग जाएगी देन योर एक्चुअल फंक्शन वैल्यूज। बट अगर आपकी एक्स वैल्यूज बहुत 1 के आसपास हैं, तो ये लाइन एक बहुत अच्छा काम कर रही है आपके फंक्शन वैल्यू को अप्रोक्सीमेट करने का। एंड दैट इज बेसिकली व्हाट बिकम्स आवर आइडिया बिहाइंड डूइंग लीनियर अप्रोक्सीमेशन। सिमिलर तरीके से मान लो लेट्स से दिस इज वैल्यू 8, ठीक है, 8 पे यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 2, ठीक है। तो अब आपको जानना है कि अच्छा 2 के आसपास अगर मैं अपने फंक्शन की वैल्यूज निकालना चाहूँ, नॉट द एग्जैक्ट वैल्यूज बट द अप्रोक्सीमेट वैल्यूज, तो आप क्या करोगे? अगर आप एफ प्राइम 2 निकालते हो तो उससे क्या होगा कि ये जो पॉइंट एफ प्राइम 8 अगर आप निकालते हो तो इससे क्या होगा कि ये जो x इक्वल टू 8 पॉइंट है, यहाँ पे जो भी टेंजेंट होगा उसका आपको स्लोप मिल गया, ठीक है। ये टेंजेंट से पास होने वाला पॉइंट भी मिल गया, तो एक तरीके से आपके पास इस लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। तो अगर आप इसका टेंजेंट देखोगे तो ये जो टेंजेंट है ये हमें क्या आइडिया दे रहा है कि भाई 8 के आसपास जो मेरा फंक्शन है वो बहुत ही क्लोज वैल्यू ले रहा है ये लाइन के आसपास, राइट। तो अगर मैं ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन का यूज करूं टू फाइंड वैल्यूज अराउंड 8, तो दैट इज गोइंग टू गिव मी अ वेरी क्लोज वैल्यू टू द एक्चुअल फंक्शन। तो जो एक्चुअल फंक्शन है उसके काफी नजदीक मुझे वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। एंड वो ही हमारा लॉजिक है बिहाइंड डूइंग लीनियर अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। सो आप क्या करते हो? यू जस्ट ट्राई टू फिगर आउट कि ये इक्वेशन क्या है। ये इक्वेशन जैसे ही आपके पास ये इक्वेशन आ गई, फिर आप क्या करते हो? जब आपकी एक्स वैल्यू 8 के बहुत नजदीक है ना, तो 8 के नजदीक जब हो रही है तो आप 8 के नजदीक वाली जो भी वैल्यूज हैं वहां पे अगर आपको फंक्शन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है तो आप ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन यूज करते हो, ठीक है। सो जनरल तरीका हमारा क्या हो गया कि आपको जो भी पॉइंट है जिसके भी आसपास लीनियरली अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करते हो? वहां पे जो टेंजेंट है उसकी लाइन बनाओ, और वो जो लाइन है इक्वेशन, वो जो इक्वेशन है लाइन की, टेंजेंट लाइन की, वो एक बहुत अच्छा अप्रोक्सीमेशन होगा ऑफ वैल्यूज फॉर द फंक्शन अराउंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट। सो इस पॉइंट के आसपास फंक्शन क्या क्या वैल्यूज लेगा अगर इसको मुझे निकालना है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे एक टेंजेंट बनाओ, इस टेंजेंट के आसपास जो वैल्यूज हैं वो आपके फंक्शन का एक बहुत अच्छा अप्रोक्सीमेशन होंगे, ठीक है। वही हमारा लॉजिक है। सो हमारा लॉजिक क्या कहता है कि जो भी पॉइंट के आसपास आपको अप्रोक्सीमेशन करना है वहां पे जो भी टेंजेंट लाइन है उसकी इक्वेशन निकाल दो, ठीक है। सो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आप लोग कैसे निकालोगे? ठीक है, तो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन, कोई भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चीजें चाहिए? यू नीड स्लोप। डू यू हैव स्लोप? तो जो भी पॉइंट है, मान लो एक पॉइंट है ए, ठीक है, तो ए के अराउंड जो टेंजेंट लाइन है उसका स्लोप क्या होगा? एफ प्राइम ए, राइट। एंड क्या आपको कोई भी एक पॉइंट पता है जो उस लाइन से पास होता है? बिल्कुल पता है, ठीक है। सो अगर एक पॉइंट है ए, सो एक्स वैल्यू है ए, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी उस पॉइंट पे? एफ ए। तो ये मुझे एक पॉइंट भी पता है जो उस लाइन से पास हो रहा है। सो मान लो अगर 1 के अराउंड मुझे लाइन बनानी है, टेंजेंट लाइन, सो आई नो दैट ओके एट x इक्वल्स टू 1 माई फंक्शन f1 इज नथिंग बट 1। तो मेरे को एक पॉइंट पता है और मुझे इसकी स्लोप भी मालूम है। इसकी स्लोप क्या हो जाएगी? एफ प्राइम 1। वो क्या होगी वो मैं निकाल लूंगी, ठीक है। तो मुझे स्लोप भी पता चल गया, पासिंग पॉइंट भी पता चल गया। तो हाउ डू यू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट? सो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट आप कैसे निकालोगे? इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन passing through AFA and with slope f prime a, वो क्या होने वाली है? सो आप बेसिकली क्या करते हो? अगर आपको जनरली निकालना है तो क्या है? स्लोप शुड बी इक्वल टू व्हाट इज योर y वैल्यू minus what is your function value at a divided by what is your x value, right? Minus what is your value that you have for x, and that should be equal to slope, ठीक है। So slope हमें पता है, this is f prime a, so that is y minus f a
डिवाइडेड बाय x माइनस a, राइट। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो व्हाट आर यू गोइंग टू गेट? यू आर गोइंग टू गेट x माइनस a f prime a equals to y minus f a, and then y equals to f a, इसको हम लोग इस तरफ लेके आ रहे हैं, सो एफ ए एंड देन प्लस एफ प्राइम ए एंड एक्स माइनस ए, ठीक है। ये जो है हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन गई, ठीक है। तो एक्चुअली ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्यों चाहिए थी? क्योंकि आपको इस पॉइंट के आसपास, 1 के आसपास अपने फंक्शन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए थी, राइट। सो व्हाट डिड यू वांट? यू वांटेड द वैल्यू ऑफ योर फंक्शन एंड व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू? अप्रोक्सीमेट वैल्यू। सो एफ एक्स की वैल्यू चाहिए थी अराउंड ए 1 था, 2 था, जो भी है, ठीक है। सो जो भी आपकी फंक्शन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो क्या होने वाली है? दैट इज गोइंग टू बी एफ ए प्लस एफ प्राइम ए इंटू एक्स माइनस ए, ठीक है। सो अब ये वैल्यूज इक्वल तो नहीं है, राइट, लेकिन अप्रोक्सीमेट है। तो अप्रोक्सीमेशन का साइन क्या होता है? दिस इज द अप्रोक्सीमेशन साइन। एक्चुअली ये नहीं है, दिस इज जस्ट मी टेलिंग यू दैट इसका मतलब अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि आपका जो फंक्शन है उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये होने वाली है अराउंड x इक्वल्स टू a, ठीक है। व्हेन बेसिकली यू कैन से व्हेन x इज क्लोज टू a, ठीक है। तो इसी को बेसिकली हम क्या बोलते हैं? लीनियर अप्रोक्सीमेशन। सो लीनियर अप्रोक्सीमेशन of your function f about a point a is nothing but, you can just write this is fx, this is approximately equal to fa plus f prime a into x minus a, where your x value is close to a, okay। this is how you do the linear approximation, ठीक है। तो अगर आपको अब मान लो निकालना है कि भाई अगर आपको आपका फंक्शन है एफ एक्स equals to you know 8, not 8 actually, fx equals to x raised to the power 1/3 ये फंक्शन था, राइट। और आपको मान लो x की वैल्यू जो है 1 के अराउंड इसकी वैल्यू निकालनी है, या फिर 1 छोड़ो 2, 8 के अराउंड मान लो वैल्यूज आपको निकालनी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि आपको पता है कि ओके f8 की वैल्यू क्या है? 2। सो यू नीड एफ ए, यू हैव दिस। आपको एफ प्राइम ए की भी वैल्यू चाहिए, ठीक है। सो आप एफ प्राइम एक्स पहले तो निकालो। एफ प्राइम एक्स किस तरीके से निकलेगा? सो बेसिकली यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो दिस इज अ पावर फंक्शन। आप क्या करोगे? 1/3 कम्स इन फ्रंट, एक्स रेज टू द पावर -2/3, राइट। दिस इज व्हाट योर फंक्शन इज। और आपको क्या निकालना है? एफ प्राइम 8। सो एफ प्राइम 8 की वैल्यू क्या होने वाली है? 1/3 इंटू ये जो पावर -2/3 है, इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? x रेज टू द पावर 2/3 एंड इंस्टेड ऑफ x वी हैव 8, राइट। सो 8 रेज टू द पावर 2/3। सो 8 रेज टू द पावर 2/3 को सॉल्व करने के लिए पहले मैं 8 रेज टू द पावर 1/3 सॉल्व कर लेती हूँ। 8 रेज टू द पावर 1/3 इज नथिंग बट 2, एंड देन 2 का स्क्वायर। सो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। So basically this is 1/3 into 1/4, so 1/12, ठीक है। सो आपका जो फंक्शन है वो किस वैल्यू के अप्रोक्सीमेट होगा? दैट विल बी नथिंग बट 2 प्लस 1/12 x माइनस 8। सो जब भी आपको 8 के आसपास आपकी फंक्शन क्या वैल्यू ले रहा है अप्रोक्सीमेटली, अगर वो निकालना है तो आप क्या करते हो? सिंपली जो भी x है आपका उसको बस इस फंक्शन में पुट करो और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक तरीके से अप्रोक्सीमेट आंसर आपको चाहिए, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू डू लीनियर अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। That is basically your funda for
लीनियर अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, लीनियर अप्रोक्सीमेशन, ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर and it makes sense. Okay, so yeah, this was the basic idea for linear approximation. Actually बाकी किसी भी टाइप का अप्रोक्सीमेशन हो उसका आइडिया यही होता है कि आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है, और यूजिंग अ पॉलिनोमियल आप उसको अप्रोक्सीमेट करना चाह रहे हो, क्योंकि कई बार फंक्शंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं. तो रादर देन लाइक एक्चुअली गोइंग एंड फिगरिंग आउट व्हाट द वैल्यू इज, आप क्या करते हो कि क्या ये जो फंक्शन है इसको एक पॉइंट के आसपास इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाली जा सकती है क्या, यूजिंग अ सिंपलर फंक्शन जिसके साथ डील करना इजी होता है, ठीक है. दैट इज द बेसिक आइडिया. All right, so with that we are done with how to do linear approximation, ठीक है. And now we want to understand what are differentials. Differential का मतलब क्या होता है, okay? All right, so let's now start talking about differentials. So differentials का कहीं ना कहीं आइडिया थोड़ा सा linear approximation से रिलेटेड ही है. उसके आइडिया से रिलेटेड है बेसिकली. तो इसका मतलब है कि लाइक इफ योर फंक्शन, जो आपकी एक्स वैल्यू है फंक्शन में, अगर वो एक पर्टिकुलर अमाउंट से चेंज हो रही है, तो आपका जो फंक्शन है उसके वाई वैल्यू में कितना चेंज होगा अगर जिस रेट से वो चेंज हो रहा है वो सेम रहता है, ठीक है. सो लेट मी एक्सप्लेन दैट लिटिल बिट इन मोर डिटेल नाउ. सो बेसिकली डिफरेंशियल किसी भी एक फंक्शन का उसका मतलब क्या होता है, ठीक है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल? सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट. सो यू वांट टू टॉक अबाउट व्हाट इज डिफरेंशियल ऑफ अ फंक्शन, ठीक है. सो इसको समझने से पहले लेट मी जस्ट स्टेट द टर्मिनोलॉजीज. पहले डिफरेंशियल ऑफ अ फंक्शन का मतलब क्या होता है. सो मान लो कि आपके पास यू हैव अ फंक्शन एफ एक्स, और ये फंक्शन है डिफरेंशिएबल, मतलब इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हो. सो एफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है. ओके, और मान लो कि आपने जो है इस फंक्शन में क्या किया, एक्स को थोड़ा सा चेंज किया, ठीक है. सो एक्स को जितना चेंज किया, सो मान लो पहले 1 थी वैल्यू और हल्का सा एक चेंज आया वैल्यू में. सो एक्स की वैल्यू 1 से थोड़ी सी चेंज हो गई, और मान लो वो जो चेंज हुआ वो कितना हुआ, dx. यहाँ पे dx क्या है, इट्स नॉट d इंटू एक्स, ठीक है, इट्स नॉट एनीथिंग एल्स. dx जो है एक्चुअली इसका मतलब क्या है, dx इज नथिंग बट अ सिंबल, जिसका मतलब क्या है कि आपके x वैल्यू ने थोड़ा सा चेंज हुआ है, x वैल्यू में थोड़ा चेंज हुआ है, ठीक है. सो दिस ओनली टेल्स यू व्हाट इज द चेंज इन द वैल्यू ऑफ x. सो dx इज अ सिंबल जिसका मतलब है कि देयर हैज बीन सम आर्बिट्ररी चेंज इन द वैल्यू ऑफ x. कितना चेंज हुआ है हमें नहीं मालूम, बट ये सिंबल हमें सिर्फ ये डिनोट कर रहा है कि आपकी x वैल्यू चेंज हुई है, ठीक है. सो लेट dx denote an arbitrary change in the variable x, ठीक है. तो ये जो dx है, इस नोटेशन का सिर्फ ये मतलब है कि आपके वेरिएबल x में कुछ चेंज हुआ है. कितना चेंज हुआ हमें नहीं पता, इट्स आर्बिट्ररी, ठीक है. सो दैट इज बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ dx हियर, ठीक है. सो आपके पास एक फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल है, और आपने अपने फंक्शन में x की वैल्यू को dx अमाउंट से चेंज किया, ठीक है. सो ऑल राइट, सो नाउ one expression which is nothing but f prime x into dx. ये क्या है, this is your differentiation of the function with respect to x, and this is how much has your x value changed. ये इन दोनों चीजों का प्रोडक्ट है. So basically this is nothing but f prime x into dx. So how much your function has changed, how much your x value has changed multiplied by what was the differentiation of the function at the starting point, ठीक है. So ये जो भी मल्टीप्लीकेशन आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल ऑफ अ फंक्शन, ठीक है. इसको हम लोग, ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल ऑफ योर फंक्शन
y इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है। और ये जो डिफरेंशियल है इसको किस चीज से डिनोट किया जाता है, इसको डिनोट किया जाता है dy वैल्यू से। सो अगेन दिस इज नॉट d इंटू वाई, दिस इज जस्ट अ सिंबल टू रिप्रेजेंट दिस पर्टिकुलर टर्म डिफरेंशियल ऑफ y, ठीक है, डिफरेंशियल ऑफ y, ठीक है। इसको कैसे डिनोट करते हैं, या तो dy लिख सकते हो, या बिकॉज यू नो दिस इज योर फंक्शन f, यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक df, ठीक है। सो बेसिकली अगर मैं लिखना चाहूंगी dy विच इज योर डिफरेंशियल ऑफ योर फंक्शन, दैट इज नथिंग बट आप f प्राइम x डिफरेंशिएशन करो फंक्शन का एट योर पॉइंट x एंड देन मल्टीप्लाई इट बाय हाउ मच योर x वैल्यू हैज चेंज्ड। सो एक तरीके से क्या है ये, यू नो वट एवर योर x चेंजेस उसी के हिसाब से योर डिफरेंशियल ऑफ y विल चेंज, एंड ये एक तरीके से क्या हो गया, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हो गया, ठीक है। दैट योर डिफरेंशियल ऑफ y इज प्रोपोर्शनल टू योर चेंज इन x, ठीक है, एंड दिस इज योर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है। दिस इज बेसिकली योर फैक्टर ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसको आप बोल सकते हो, ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब ये तो ठीक है समझ लिया, बट इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंशियल क्यों नई टर्मिनोलॉजी लेके आए हैं, क्या मतलब है इसका, ठीक है। सो बेसिकली डिफरेंशियल को समझने के लिए एक थोड़ा सा ग्राफ समझते हैं। सो मान लो कि यू नो दिस इज हाउ you have a function, let's say you have a function which looks something like this, ठीक है। मान लो वो जो फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, आई विल मेक अ कर्व्ड ग्राफ दिस टाइम, लेट्स से समथिंग लाइक दिस, ठीक है, वेरी नाइस, ओके, दिस इज हाउ योर फंक्शन लुक्स लाइक, ठीक है। और मान लो कि आपने शुरुआत की थी इस पॉइंट से, ठीक है, और इसको हमने क्या बोला, मान लो पॉइंट एक्स नॉट, कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स नॉट थी, ये आपका फंक्शन है, दीज आर योर एक्स वैल्यूज, दीज आर योर एफ एक्स वैल्यूज, फंक्शन वैल्यूज, ठीक है। तो जब आपके एक्स की वैल्यू एक्स नॉट होगी तो आपके फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, एफ ऑफ एक्स नॉट, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट योर एफ ऑफ एक्स नॉट, ठीक है, दिस इज योर वैल्यू, ठीक है, ये हो गया। चलो जी, अब जो जो इन्होंने बोला है हम उसी हिसाब से ऑपरेट करते रहेंगे, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है, ये जब भी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, डेफिनेशन में क्या बोल रहे हैं कि आपका जो एक्स वैल्यू है वो एक अमाउंट से चेंज हो रहा है, और वो अमाउंट जितना चेंज हो रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं dx, ठीक है। तो मान लो हमारी जो स्टार्टिंग पोजीशन थी वो ये थी कि हमने यहां से स्टार्ट किया था, एक्स नॉट से स्टार्ट किया था, और आपकी फंक्शन वैल्यू एक अमाउंट से चेंज हो रही है विच इज dx, ठीक है। तो पहले वैल्यू थी इधर एक्स नॉट, अब कितनी हो जाएगी, एक्स नॉट प्लस डी एक्स, राइट, इतना आपका मान लो फंक्शन चेंज हो गया, ठीक है। सो मान लो जो आपका dx है वो कितना है, एक्स नॉट प्लस dx, तो जो आपका चेंज इन x है वो कितना हो गया, दिस मच। सो योर dx इज दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, ठीक है जी, ओके जी। अब अगर आपकी x वैल्यू यहाँ पे है एक्स नॉट प्लस डी एक्स पे, ठीक है, तो अगर आपको इस पॉइंट पे आपकी फंक्शन वैल्यू जाननी है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे अगर आपकी फंक्शन वैल्यू जाननी है तो वो क्या होने वाली है, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस डी एक्स, ये चेंज इन एक्स जितना भी है वो ऐड करो और उस पे फंक्शन वैल्यू निकाल दो, वो आपको फंक्शन की वैल्यू दे देगा, ठीक है, ओके जी। तो अब हाँ, ये वाली कौन सी लाइन है, y इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है, ओके। अब आपको मान लो ये जानना है कि यू नो व्हाट इज योर y में कितना चेंज आया, जब आपकी x की वैल्यू यहां से यहां पे मूव करी तो आपके फंक्शन में कितना चेंज आया, आपके फंक्शन में इतना चेंज आया, राइट, दिस इज हाउ मच योर y वैल्यू चेंज्ड व्हेन योर x वैल्यू मूव फ्रॉम हियर टू हियर। तो अगर आपको चेंज इन y जानना है, ठीक है, चेंज इन y, ठीक है, तो वो क्या होने वाला है भाई, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस डी एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, ठीक है, ये आपका चेंज इन फंक्शन हो गया व्हेन योर एक्स वैल्यू गोज फ्रॉम एक्स नॉट टू एक्स नॉट प्लस डी एक्स, ठीक है, ओके जी। अब देखो, बट दिस इज नॉट व्हाट डिफरेंशियल इज, डिफरेंशियल का मतलब क्या है कि देखो, अगर आप यू नो इस पॉइंट पे किसी एक रेट से मूव कर रहे थे, राइट, व्हाट इज योर रेट ऑफ चेंज एट दिस पॉइंट,
इस पॉइंट पे आपका फंक्शन किस रेट से ग्रो कर रहा था, वो अगर हमें निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पे स्लोप निकालते हैं, ठीक है। सो इस पॉइंट पे जो भी हमारी स्लोप थी वो कैसे पता चलती है, जो भी टेंजेंट है उसकी स्लोप हमारी वैल्यू होती है। तो इस पॉइंट पे आपका फंक्शन किस स्पीड से, किस रेट से मूव कर रहा था, इस रेट से मूव कर रहा था, कि जैसे जैसे आपकी एक्स वैल्यू इतनी चेंज होगी आपका फंक्शन इस रेट से आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। सो डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है कि जिस भी पॉइंट पे आप हो वहां से इफ यू चेंज योर एक्स वैल्यू टू अ सर्टेन अमाउंट, आपका वाई वैल्यू कितना चेंज होना चाहिए अगर आप उसी रेट से मूव करते रहो, ठीक है। अब जैसे देखो एक्चुअली क्या हो रहा है, आप पहले इस रेट से मूव कर रहे थे, फिर जैसे आपका फंक्शन आगे बढ़ा आपकी रेट ऑफ मूवमेंट और बढ़ गई और बढ़ गई, जिस स्पीड से आपका फंक्शन मूव कर रहा है, राइट। जिस स्पीड से आपका फंक्शन मूव कर रहा है वो बढ़ता जा रहा है, राइट। इनिशियली इट वाज दिस, कि अगर आपका फंक्शन और ग्रो नहीं करता तो इस रेट से आप मूव कर रहे होते, इस रेट से, ठीक है। तो डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है कि अगर आपका रेट ऑफ मूवमेंट फिक्स कर दिया जाए और एक्स को बोला जाए कि बेटा आप इतना चेंज हो जाओ, तो आपका वाई वैल्यू कितना चेंज होगा, ठीक है। सो इफ योर एक्स चेंज बाय दिस मच अमाउंट एंड द रेट ऑफ मूवमेंट रिमेन्स द सेम, ठीक है, देन हाउ मच डज योर वाई वैल्यू चेंजेस, उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल, ठीक है। सो इफ आई वांट टू जस्ट राइट इट आउट, सो इस रेट से अगर आप मूव कर रहे हो, ठीक है, इस पॉइंट पे आपका फंक्शन इस रेट से मूव कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपकी एक्स वैल्यू इतना चेंज होती है तो आपकी वाई वैल्यू कितनी चेंज होगी, इतनी, अगर आपका फंक्शन इसी स्पीड से मूव करे, ठीक है। अभी तो इसने स्पीड चेंज कर लिया इसलिए आपकी एक्चुअल वाई वैल्यू तो ऊपर चली गई है, बट डिफरेंशियल सिर्फ इस बारे में बात करता है। तो जो आपका डिफरेंशियल है वो क्या है, डी वाई। This distance is your dy, and this entire distance, like this distance from here to here, this is your change in y. So ये जो पूरा डिस्टेंस है ये क्या है, चेंज इन y, और ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल ऑफ द फंक्शन एफ एक्स या फिर डिफरेंशियल ऑफ y, ठीक है। ये डिफरेंशियल का मीनिंग होता है कि अगर आपका फंक्शन जिस रेट से मूव कर रहा था वो रेट फिक्स कर दी जाए और अगर आप x की वैल्यू चेंज करो तो आपकी y वैल्यू में कितना चेंज होगा, दैट इज बेसिकली व्हाट द मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल इज, ठीक है। सो ऑलराइट, काफी लंबा डिस्कशन हो गया। सो डिफरेंशियल का मतलब कहीं भी ये नहीं होता है कि एक्चुअल फंक्शन कितना चेंज हुआ, नो, एक्चुअल फंक्शन चेंजेस दिस मच, बट डिफरेंशियल का मतलब क्या है, अगर जिस स्पीड से आपका फंक्शन चेंज हो रहा है, अगर आपने यहाँ पे एक्स नॉट पे जिस स्पीड से चेंज हो रहा है अगर उसको कांस्टेंट रखा जाए तो आपका फंक्शन कहाँ पहुंचता अगर रेट जो है सेम रहती, वो होता है डिफरेंशियल, ठीक है। ओके, अब डिफरेंशियल जो है, डिफरेंशियल को एग्जीक्यूट करने के बहुत सारे रूल्स भी होते हैं, ठीक है। अब जैसे बेसिकली मान लो आपको कुछ कुछ एग्जाम्पल दे दिए जाएं कि यू नो मान लो कोई बोले कि प्लीज फाइंड द डिफरेंशियल फॉर दिस a raised to the power, sorry, this is find the differential for a x raised to the power a plus b, ठीक है। a, b and small a are constants, ठीक है। तो ये क्या पूछना चाह रहे हैं, ये पहले तो समझ लो, ये क्या पूछना चाह रहे हैं कि भाई मेरे पास ये फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन है मेरा, दिस इज देयर एफ एक्स, ठीक है। सो दे वांट टू अंडरस्टैंड कि मान लो कोई भी आप एक एक्स फिक्स करते हो वहां से जो रेट ऑफ चेंज हो रहा है अगर आप उसको फिक्स कर दो तो आपका वाई कितना चेंज होता, ठीक है। दैट्स बेसिकली व्हाट दे वांट टू अंडरस्टैंड। सो दे वांट टू अंडरस्टैंड, मान लो इसको आप वाई बोल रहे हो, ठीक है, एफ एक्स या वाई जो भी आप बोलना चाहते हो, ठीक है, दैट इज नथिंग बट ए एक्स रेज टू द पावर ए प्लस बी, अगर आपको ये निकालना है, ठीक है। सो आपको बेसिकली क्या बोल रहे हैं, ये dy निकालना है। तो dy निकालने का क्या तरीका है, दैट इज नथिंग बट पहले तो आप डिफरेंशिएशन करो f प्राइम x एंड देन जस्ट मल्टीप्लाइड बाय dx, हाउ मच योर x वैल्यू इज चेंजिंग। सो दिस इज एग्जैक्टली द फॉर्मूला दैट वी हैड हियर, सो यू जस्ट हैव टू कीप दिस इन माइंड, ठीक है। सो
अब अगर आपको dy निकालना है इन दिस केस, तो वो क्या होगा, पहले तो f प्राइम x निकालो। सो f प्राइम x क्या होगा, अब हमें डिफरेंशिएशन तो करना आता है तो हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। सो a कांस्टेंट है, दिस इज अ पावर फंक्शन, ठीक है, x पावर a कम्स इन फ्रंट एंड देन x रेज टू द पावर a माइनस 1, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद b इज अ कांस्टेंट, सो दिस बिकम्स 0। सो ये बेसिकली आपके पास रह गया, and then you can just multiply it by dx. So basically this is what your differential is, ठीक है। So this is dy equals to a x raised to the power a minus 1 dx. This is what you have, ठीक है। और भी कॉम्प्लिकेटेड चीजें वो लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। मान लो थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस वो पूछ सकते हैं। तो बेसिकली डिफरेंशिएशन पे जो जो रूल्स अप्लाई होते हैं वो सारे रूल्स डिफरेंशियल्स पे भी अप्लाई होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंट रूल्स फॉर डिफरेंशियल्स, तो अगर किसी को डिफरेंशियल्स निकालने हैं तो जो डिफरेंशिएशन के रूल्स हैं, द सेम रूल्स कैन बी अप्लाइड ओवर हियर, ठीक है। सो रूल्स फॉर डिफरेंशियल्स, अब ये आपको निकालना है, ठीक है। तो रूल्स फॉर डिफरेंशियल्स किस तरीके से निकालेंगे कि मान लो आपको डिफरेंशियल निकालना है फॉर अ फंक्शन जो इस फॉर्मेट का है, ए एफ प्लस बी जी, ठीक है। और ये एफ और जी एक्चुअली क्या है, ये दो फंक्शंस हैं अपने आप में और जो डिफरेंशिएबल हैं, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, एफ एंड जी आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस of x, ठीक है। इफ दैट इज द केस देन व्हाट इज हैपनिंग, तो अगर आपको डिफरेंशियल निकालना है इस तरीके के किसी फंक्शन का, ठीक है, तो आपका तो सिंपल सा फंडा है कि भाई ये जो है, मान लो कोई एक बड़ा फंक्शन है, ठीक है, तो ये जो भी चीज है इसको डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। तो मान लो इसको अगर आप y मान लो, इस पूरी चीज को y मान लो, ठीक है। तो आपको तो बेसिकली dy निकालना है, तो dy क्या होगा, f प्राइम x, राइट, या फिर dy बाई dx जो भी था, f प्राइम x इंटू डी एक्स, राइट। सॉरी, अब f प्राइम, अब f नहीं यूज कर सकते बिकॉज दिस इज f इटसेल्फ। सो ओके, मान लो दिस इज अ डिफरेंट फंक्शन जिसको आप बोल रहे हो दिस इज अ फंक्शन एच एक्स, ठीक है। तो आपका सिंपल सा फंडा है, आप क्या करो, h प्राइम x निकालो एंड देन मल्टीप्लाई बाय dx, सिंपल है, ठीक है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे देखो सेम चीज आप अप्लाई कर सकते हो, विच इज ओके, लेट्स सी। सो साथ साथ में हमारा प्रूव भी हो जाएगा कि इसको करना कैसे है, ठीक है। चलो जी, लेट्स डू दैट। तो अब मान लो किसी ने बोला कि यू हैव टू डिफरेंशिएट, एच एक्स वॉज नथिंग बट ए एफ प्लस बी जी, ठीक है। और एक्चुअली अगर आप ए एफ ऑफ एक्स प्लस बी जी ऑफ एक्स ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना है, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का क्या तरीका है, ए कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ए एफ प्राइम एक्स प्लस बी जी प्राइम एक्स, ये हो गया, ठीक है। आपने तो एच प्राइम एक्स कर दिया, ठीक है, ये आपका फंक्शन हो गया जिसको आपको डिफरेंशिएट करना था। अब इसको बस आपको dx से मल्टीप्लाई करना है। dx क्या है, हाउ मच योर x वैल्यू यू हैव चेंज्ड एंड दैट इज आर्बिट्ररी। तो अब आपका d ऑफ af प्लस bg, ये जो है ये कितना हो गया, h प्राइम x a ऑफ f प्राइम x प्लस b ऑफ g प्राइम x, ये हो गया h प्राइम x और इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है dx से। सो व्हेन यू डू दैट, अब क्या हो गया, ये एक्चुअली क्या है, चेंज इन x, तो चेंज इन x तो आप मल्टीप्लाई कर ही सकते हो कहीं पे भी, ठीक है। ये क्या हो गया, a f प्राइम x dx प्लस b g प्राइम x एंड dx। अब अगर आप ध्यान से देखोगे थोड़ा सा, अब कोई पूछे तो ये क्या है, व्हाट इज दिस, एंड व्हाट इज दिस, कैन यू टेल मी व्हाट दीज टू थिंग्स आर। सो क्या मैं इसको ये बोल सकती हूँ कि अरे ये तो मेरा f फंक्शन का डिफरेंशियल है, राइट।
और मैं बोल सकती हूँ अरे ये तो मेरा जी फंक्शन का डिफरेंशियल है, राइट? तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? ए, दिस इज माई डिफरेंशियल फॉर एफ फंक्शन, राइट? प्लस दिस इज बी, माई डिफरेंशियल फॉर जी फंक्शन, राइट? सो एक्चुअली अगर आपको डिफरेंशियल निकालना है ए एफ प्लस बी जी का, तो कोई कॉम्प्लिकेशन की जरूरत नहीं है। जैसे डिफरेंशिएशन करते थे वैसे ही करो, डिफरेंशियल में भी सेम रूल लगता है, ठीक है? तो डिफरेंशिएशन करते टाइम क्या होता था, कांस्टेंट बाहर आ जाता था और एडिशन को आप अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देते थे। तो डिफरेंशियल में भी आपको सेम चीज करनी है, ठीक है? सो दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर रूल कैन बी अप्लाइड, ठीक है? तो दैट इज द फर्स्ट थिंग। ओके जी, फर्स्ट हो गया। अब इसी तरीके से बाकी सारे रूल्स भी एप्लीकेबल है, सो आई एम नॉट गोइंग टू derive them, but I will write those formulas, ठीक है? सो मान लो अगर आपको ये निकालना है, सो दैट वाज योर फर्स्ट प्रॉब्लम, फर्स्ट रूल दैट यू कैन अप्लाई। अब दूसरा रूल क्या है कि अगर कोई आपको बोल दे कि भाई आपको डिफरेंशियल निकालना है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का, ठीक है? तो वो क्या होने वाला है, g एज इट इज differential of f plus f as it is differential of g। जैसे डिफरेंशिएशन में रूल अप्लाई होता था, सेम रूल यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है? ओके जी। एंड सिमिलरली अगर आपको डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस, एफ एंड जी आर फंक्शंस, अगर डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस है उसके लिए डिफरेंशियल निकालना है, डिफरेंशियल नॉट डिफरेंशिएशन, ठीक है? तब क्या होगा, सेम थिंग जो हम वहां पे करते थे, जो आपका डिनोमिनेटर में फंक्शन था उसको आप स्क्वायर करते थे, ठीक है? फिर उसको साइड में एक बार ही लिखते थे, ठीक है? फिर आप एफ को डिफरेंशिएट करते थे, तो यहाँ पे डिफरेंशियल करना है डी एफ, फिर आप माइनस करते थे, फिर आप एफ फंक्शन रखते थे, और फिर आप डिफरेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू द डिनोमिनेटर फंक्शन, तो यहाँ पे डिफरेंशियल हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू जी, ठीक है? एंड द ओनली थिंग दैट वी हैव टू टेक केयर अबाउट इज कि ये जो हमारा जी फंक्शन है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है जी? इस तरीके से हमें प्रोसीड करना है अगर हमें डिफरेंशियल्स निकालने हैं तो, ठीक है? तो दैट्स हाउ वील गो अबाउट इट। एंड ओके, सो दैट इज वन, ठीक है? तो इफ आई जस्ट वांट टू शो यू कि अच्छा ये कैसे आया, तो इट्स अगेन वेरी वेरी सिंपल। देखो जी क्या करना है, अब ये जो है एफ इंटू जी, इसको एक फंक्शन मान लो एच एक्स, एच एक्स इज नथिंग बट एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है? सो वी आर प्रूविंग दिस। तो अगर आपको इसको शो करना है कि अरे ये तो एक्चुअली ट्रू है, विच इज वाई वी आर स्टडिंग इट, बट ओके, तो आपको क्या निकालना है, डिफरेंशियल ऑफ एच निकालना है। वो क्या होगा, एच प्राइम एक्स निकालो और फिर डिफरेंशियल ऑफ चेंज इन एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। सो व्हाट विल बी एच प्राइम एक्स, एच प्राइम एक्स विल बी नथिंग बट, अब आपको एच को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या करोगे, क्वोशंट रूल अप्लाई करोगे, राइट? तो वो क्या हो जाएगा, एफ एक्स एज इट इज जी प्राइम एक्स, ठीक है, प्लस जी एक्स एज इट इज एफ प्राइम एक्स। ये किया, ये आपका एच प्राइम एक्स हो गया और इसको डी एक्स से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? और फिर डी एक्स को दोनों साइड अंदर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो दिस इज एफ एक्स जी प्राइम एक्स एंड डी एक्स प्लस जी एक्स एफ प्राइम एक्स एंड डी एक्स। अब ये चीज अगेन लाइक वी कम टू नो कि ओके ये तो हमें पता है कि ये क्या है, और ये भी पता है हमें क्या है, ये एक्चुअली क्या है, डिफरेंशियल ऑफ जी एंड डिफरेंशियल ऑफ एफ। सो आप इसको कैसे लिख सकते हो, एफ एक्स एंड दिस इज डिफरेंशियल ऑफ जी प्लस जी एक्स इंटू डिफरेंशियल ऑफ एफ, राइट? दिस इज एक्चुअली व्हाट वी रोट हियर, जी डिफरेंशियल ऑफ एफ प्लस एफ डिफरेंशियल ऑफ जी, राइट? सो यही हमने प्रूव कर दिया है, ठीक है जी? सो ये हमारा एक तरीके से ये सारे रूल्स एप्लीकेबल है। सो यू कैन ट्राई दिस ऑन योर ओन, बट आई एम नॉट गोइंग टू डू इट राइट नाउ। सो ओके, आई होप दिस इज क्लियर। एंड there is one more point that I wanted to make, which is related to differentials only. So मान लो कि आपके पास एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है? ये आपके पास एक फंक्शन है और हम बोल रहे हैं कि अच्छा x जो है वो खुद एक वेरिएबल है t, उसका फंक्शन है, ठीक है? सो
x is a variable, x is a function of gt, ठीक है, x is a function of t and it is nothing but gt. So x क्या है, function of t, ठीक है. तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि लाइक y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड x इज अ फंक्शन ऑफ t. सो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि y इज ऑल्सो अ कॉम्पोजिट फंक्शन ऑफ t, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है. सो हम क्या लिख सकते हैं, y इज एक्चुअली व्हाट, f ऑफ x फॉर g t, इस तरीके से लिखा जा सकता है, राइट. सो y इज अ कॉम्पोजिट फंक्शन ऑफ t, ठीक है. और ये जो भी एक्सप्रेशन बन के आ रहा है इसको आप ऐसे ही लिख सकते हो कि चलो ये जो भी एफ ऑफ जी जो भी बन के आ रहा है वो मान लो एच है, ठीक है. सो रादर देन डूइंग दैट यू कैन से दैट ओके दिस इज नथिंग बट एच ऑफ टी, ठीक है. एच इज नथिंग बट जो भी फॉर्म एफ और जी को मिक्स करके बन रही है उसको हम लोग एच बोल रहे हैं, ठीक है. सो अगर आपको डिफरेंशियल ऑफ वाई निकालना है, ठीक है, डिफरेंशियल ऑफ वाई, तो डिफरेंशियल ऑफ वाई क्या होने वाला है. सो लेट्स से योर गोल इज टू फाइंड डिफरेंशियल ऑफ y, ठीक है. तो जब आप डिफरेंशियल ऑफ y निकालोगे तो क्या होगा, अब y फंक्शन जो है वो क्या है, एच टी. सो डिफरेंशियल ऑफ y क्या होगा, आप क्या करोगे, एच प्राइम टी निकालोगे, ठीक है, और फिर डी टी वॉट एवर हैज बीन द चेंज इन टी वैल्यू, दैट इज योर डिफरेंशियल, राइट. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग, ठीक है. ये हो गया, यहां तक कोई डाउट है. चलो जी, इसके बाद द मोमेंट यू हैव दिस, अब चेन रूल अगर लगाई जाए एच प्राइम टी को निकालने के लिए, अब हमारा मकसद है एच प्राइम टी को निकालना, ठीक है. अब एच प्राइम टी क्या होगा, एच प्राइम टी तो खुद एच टी तो खुद एफ और जी से मिल के बना हुआ है, राइट. सो एच टी इज नथिंग बट व्हाट, एफ ऑफ जी ऑफ टी. तो अगर आपको एच प्राइम टी निकालना है, ठीक है, तो वो क्या होगा, चेन रूल क्या बोलता है, पहले तो आप अपने एक्सटीरियर फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लो, ठीक है. सो बेसिकली पहले तो आप f को डिफरेंशिएट कर लो और फिर जो आपका अंदर वाला फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू t. सो g प्राइम t एंड yeah basically this is what our chain rule says. So according to chain rule, तो यहाँ पे क्या किया है, जब भी आप इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है. सो बेसिकली यू वांट टू डू डी एच बाई डी टी, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, डी एफ बाय लेट्स से इसको u बोल दो, सो डी एफ बाई डी यू एंड देन डी यू बाय डी टी, दिस इज व्हाट यू डू. सो ये पहला स्टेप है और फिर ये जो है दूसरा स्टेप है, ये हमने चेन रूल यहाँ पे अप्लाई करा है, ठीक है. सो जब आप ऐसा करते हो तो ये जो एक्चुअली आपका डी वाई वैल्यू है, दिस डी वाई वैल्यू, दिस बिकम्स dy equals to h prime t is what, f prime gt, ठीक है, and g prime t and then this is nothing but dt, right. ठीक है, तो can I see this, what is g prime t into dt, g prime t into dt क्या हो जाएगा, हमें पता है कि x और g इनका रिलेशनशिप ये है, ठीक है. तो कोई अगर आपको बोलता कि हमें डिफरेंशियल ऑफ एक्स निकालना है, तो डिफरेंशियल ऑफ एक्स क्या होने वाला था, जी प्राइम टी डी टी, राइट. सो जी प्राइम टी डी टी इज नथिंग बट डी एक्स. तो ये चीज तो हो गई डी एक्स, और जी टी खुद क्या है, जी टी इज एक्चुअली एक्स ओनली, राइट. सो आप यहाँ पे जी टी की जगह एक्स भी लिख सकते हो, राइट. सो एफ प्राइम एक्स and that is equals to your differential of y. तो what does this show? So इससे हमें ये पता चल गया कि अगर आपका composite function है तो आप जो है either you do this, ठीक है, जो भी आपका मेन एक्सटीरियर फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में आप चीजें कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. सो either you just find the differential using this, ठीक है, या फिर आप इस तरीके से भी डिफरेंशियल निकाल सकते हो. आइदर वे इट्स नॉट गोइंग टू मेक अ डिफरेंस, ठीक है. सो द ओनली थिंग दैट वी वांट टू से दैट चाहे आप इसको मेन चीज मान के इस तरीके से डिफरेंशियल निकालो
चाहे आप इसको मेन चीज मान के इस तरीके से डिफरेंशियल निकालो, बोथ आर गोइंग टू गिव यू द सेम रिजल्ट्स. ठीक है. सो व्हाट डज इट शो दैट अगर आपका एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है, सो जो dy है, जो आपका डिफरेंशियल है, वो क्या होने वाला है, एफ प्राइम एक्स dx. दिस इज गोइंग टू बी द डिफरेंशियल, चाहे ये कॉम्पोजिट फंक्शन है या नहीं है. ठीक है. इसलिए आपको इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अरे ये तो कॉम्पोजिट फंक्शन है. सो कॉम्पोजिट फंक्शन हो या ना हो, नहीं है तो डायरेक्टली हमें पता ही है ये ऐसे होना है, और अगर है भी तो भी इट्स नॉट गोइंग टू मेक अ डिफरेंस बिकॉज एक्चुअली दिस इज व्हाट इट टर्न्स आउट टू बी. ठीक है. सो योर डिफरेंशियल इज, if you have a function y equals to fx, its differential is going to be this dy equals to f prime x dx only, irrespective of whether it is composite or not. ठीक है. So it will be dy equals to f prime x dx, whether x depends on other variables or not. Depends on other variables का मतलब है किसी और वेरिएबल पे तो डिपेंड नहीं कर रहा, whether it's composite or not. ठीक है. Other variables or not. Okay. So yeah, basically that is all that I wanted to mention regarding differentials also. Okay. So yeah. All right. So we are done with differentials and we are done with linear approximation as well. So guys, I think it'll become a long lecture if we do rest of things also. So we will do rest of the two things in our next lecture, which will also be uploaded super soon, so don't worry about that. So yeah, I think that's it for today's lecture. I'll see you super soon in our next video, so which will probably be posted the day after only. So keep practicing, don't panic, and do as much practice as you can, because that's the only thing that's going to rescue you in mathematics. So I hope this video was of some value to you. If you enjoyed watching it and it was of some help to you, please consider subscribing to my channel and please share it with your friends because they might also benefit from this. So yeah, till we meet again, thank you so much and have a good day. Thank you.